Hello all. In this video series, what we will do is we will see some of the queries that are normally asked in the placement process. So, if you are preparing for the interviews, if you are in the BTech final year or you are doing any bachelor's computer science degree, and if you are preparing for the interviews, if you want to go in IT company, this video is for you. So basically, I have worked in the MIT University for around 3 years. So I thought I should share my experience with you guys. So I am creating a series in which I will first of all cover the SQL, then other programming languages. And first of all, I am picking the SQL because in this particular language, students are very much confused. So like this is very easy, but if you go by the book, you have to work very hard. You have to understand uh, the queries. Like it is very difficult to prepare for the interview if you only study from the book. So I am picking up some of the queries that are very much frequently asked in the interviews. Like these queries are asked in the TCS, in the Wipro, in the tech system, or any other company. So basically, if you are going for a 10 up to 10 lakh package, okay, you should prepare for the SQL, because above 10 lakh package, like if you go for a higher package, 15 lakh or 20 lakh, mainly they will ask things from the project. But if you want a basic package up to 10 lakh, okay, then you have to prepare for the SQL. You cannot skip it, and this is very easy, but still students are confused. So I thought I should make a video series in which I will cover the theory and the queries. So actually SQL is very easy to learn, but let us cover some of the queries that are very much frequently asked. So directly I will jump to the slide. So this is our first query, and this is the main query that is asked in the interview. So if someone is asking query from the SQL, they will definitely ask this particular query. So the name of the query is nth highest salary query. Okay, here it is written fourth highest salary. So I am saying nth highest, n you can replace with any number, 1 2 3 4 5 6 up to infinity. Okay, so अगर आपसे कोई एसक्यूएल से क्वेश्चन पूछ रहा है, देन दे विल आस्क दिस क्वेश्चन, लाइक उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, 95% ऑफ टाइम ये क्वेरी पूछी जाती है. क्यों पूछी जाती है? बिकॉज इस क्वेरी को करने के दो तरीके हैं. जो पहला तरीका है वो है खुद से करना. खुद से करने का मतलब दैट यू कैन यूज द कॉरिलेटेड क्वेरी. कॉरिलेटेड क्वेरी क्या होती है? जैसे आप सबने नेस्टेड लूप्स पढ़े हैं, वैसे कॉरिलेटेड क्वेरी होती है, नेस्टेड क्वेरी. सो नॉर्मली नेस्टेड क्वेरी बहुत जगह यूज होती है, सो रियल वर्ल्ड में भी. सो लाइक वो देखना चाहते हैं कि इंटरव्यूअर्स कि आपको नेस्टेड क्वेरी का बेसिक पता है या नहीं. सो दैट्स व्हाई दिस क्वेरी इज आस्क्ड. So there are two methods to solve this particular query. The first method is you have to do the effort by yourself. Means you have to use the correlated query or nested query. Okay. Second way is you can use the inbuilt functions that are created by the SQL programmers or developers or whatever. These particular functions are limit and top. So दो ways हैं, एक तो खुद से करना और दूसरा है टॉप और लिमिट कीवर्ड का यूज करना. अब इंटरव्यू के टाइम नॉर्मली इंटरव्यू ये खाएगा कि आप पहले खुद से करके दिखाओ. वो देखना चाहते हैं कि नेस्टेड क्वेरी का कंसेप्ट पता है या नहीं. सो वो आपको कहेंगे कि इस क्वेरी को सॉल्व करो, बट आपको कैसे सॉल्व करना है? नेस्टेड क्वेरी की हेल्प से. ओके, उसके बिना नहीं. सो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, वो इनबिल्ट फंक्शन यूज करके लिख देते हैं क्वेरी, लेकिन वो मना कर देते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर, लाइक you have to understand like how we are solving this particular query using the nested query concept. अगर वो क्लियर हो जाता है, then the second way is you have to understand that how can we use the inbuilt function like top and limit. So दोनों वे से क्वेरी पूछी जाती है, वो दोनों को देखेंगे हम. सो बेसिकली क्वेरी का नाम है nth हाईएस्ट सैलरी. यहाँ मैंने लिखा है राइट क्वेरी टू फाइंड फोर्थ हाईएस्ट सैलरी. मैं यहाँ पे फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी कुछ भी लिख सकता था. थर्ड हाईएस्ट सैलरी, 10th हाईएस्ट सैलरी, 11th हाईएस्ट सैलरी, वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में. अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस क्वेरी को थोड़ा चेंज कर दूं, इफ आई से दैट राइट क्वेरी टू फाइंड द फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी, तो यहाँ पे बच्चे ये कहेंगे कि बहुत इजी है. क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस, जैसे कि मैक्स है, मिन है, सम है, काउंट है, एवरेज है.
सो दीज यूजिंग दीज फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मैक्स फंक्शन. ओके, सो वी कैन राइट द क्वेरी लाइक दिस: सेलेक्ट मैक्स इन द ब्रैकेट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, और वो आपको मैक्सिमम हाईएस्ट सैलरी दे देगा, बट वो सिर्फ हाईएस्ट सैलरी बता सकता है. ये मैक्स फंक्शन सिर्फ उस कंडीशन में काम करेगा जब आपको सिर्फ फर्स्ट हाईएस्ट एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है. ये मेथड काम नहीं करेगा जब आपको सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट और फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी निकालनी है. सो इस केस में हमें नेस्टेड क्वेरी यूज करनी पड़ेगी. ओके, सो लेट अस सी, these are the two solutions. Okay, by using limit keyword you can use the top keyword also. ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं, बट इंटरव्यूअर इसे प्रेफर नहीं करते. वो चाहते हैं कि आप एफर्ट करें, और मेनली नेस्टेड क्वेरी, कोरिलेटेड क्वेरी बहुत जगह काम आती है, तो वो ये देखना चाहते हैं कि आपको उसका बेसिक कंसेप्ट पता है या नहीं. ओके, जैसे कि प्रोग्रामिंग में हमें पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम के लिए हमें नेस्टेड लूप का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो यहाँ पे भी वो सिर्फ ये चेक करने के लिए पूछ रहे हैं कि आपको कोरिलेटेड क्वेरी का कंसेप्ट पता है या नहीं. So this is the solution actually. So I will use the pointer. So this is actually the outer query and this is the inner query. जब इसे कहते हैं हम नेस्टेड क्वेरी, जैसे कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में नेस्टेड फॉर लूप होते थे, एक पेरेंट लूप होता था, एक चाइल्ड लूप होता था, जैसे कि आपने पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम्स में पढ़ा होगा. सो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आउटर क्वेरी, इनर क्वेरी है. सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने n-1. जैसे कि हमें फाइंड करनी है सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो यहाँ n हो जाएगा 2 और n-1 हो जाएगा 2-1 और 1. तो मैं इस n-1 को 1 से रिप्लेस कर दूंगा. इसका मतलब है एक डिजिट कम लिखनी है. जैसे कि मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी थी, तो क्वेरी तो यही रहेगी, बस यहाँ पे 1 लिख देना. अगर मुझे फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो एक नंबर कम लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है. सो बेसिकली ये क्वेरी है जो आपको याद करनी है. याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप समझ जाएंगे तो. सो मैं एक छोटी छोटी बात बता देता हूँ. यहाँ पे इक्वल टू लिखा है. ये इक्वल टू एक्चुअली अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो डबल इक्वल टू जैसा है. मीन्स ये कंपैरिजन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है एक तरीके से. ओके, सो लेट अस सी हाउ द क्वेरी इज वर्किंग एक्चुअली. दिस इज द नेम ऑफ टेबल एम्प्लॉय E1 एंड दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ टेबल एम्प्लॉय E2. सो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, यहाँ एक टेबल की हम 2 कॉपीज बनाएंगे. इसे कहते हैं एलियास. एम्प्लॉय के आगे हम लिख सकते हैं उसका नाम. तो एम्प्लॉय जो टेबल है, मेरे पास एक ही टेबल है एम्प्लॉय, बस उसकी 2 कॉपी बनेगी. फर्स्ट कॉपी का नाम होगा E1, सेकेंड कॉपी का नाम होगा E2. अब मैं आपको पिक्चर्स की हेल्प से बताता हूँ ये क्वेरी कैसे काम कर रही है. एक बार वो समझ आ गया तो इस क्वेरी को आप इजीली समझ पाएंगे. सो I have taken a dummy table. You can take any table. This is very simple table. How many employees are there? 5 employees are there and their salary is given. It is there in the dollar. Okay, it is not in the rupees. So it is okay salary, like very basic salary you can say. So here what I am doing is I will create 2 copies. मैं इसकी 2 copies बनाऊंगा. एक का नाम रखूंगा E1, एक का नाम रखूंगा E2. क्यों? क्योंकि मैं नेस्टेड क्वेरी यूज कर रहा हूँ. एक पेरेंट होगा, एक चाइल्ड होगा, मतलब एक आउटर क्वेरी होगी, एक इनर क्वेरी होगी. दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग 2 टेबल्स. ओके, और फिर मैं उसको कंपैरिजन कर लूंगा. ये 2 टेबल्स हो गए, ठीक है, जो मैंने बनाया है. एक का नाम है E1, एक का नाम है E2. सो मैं क्वेरी को थोड़ा चेंज करता हूँ. मैं सिंप्लिसिटी के लिए ये कहता हूँ कि मुझे फाइंड करनी है सेकेंड हाईएस्ट सैलरी. ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी. तो मैं n-1 की जगह लिखूंगा 1. सो बेसिकली हमें करना क्या है, नेस्टेड क्वेरी काम कैसे करती है. नेस्टेड क्वेरी आप इजीली समझ सकते हैं अगर आपको नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट पता है. नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करता है, पहले जो पेरेंट है एक बार चलता है और चाइल्ड पूरा चलता है. मीन्स पेरेंट सिर्फ एक बार चलेगा, चाइल्ड पूरा चलेगा, फिर दोबारा पेरेंट चलेगा, चाइल्ड पूरा चलेगा. मीन्स लेमन टर्म में कहें तो पेरेंट एक बार चलता है, चाइल्ड सारा का सारा चलता है. तो नॉर्मली हम क्या करेंगे नेस्टेड क्वेरी में, हम इस रो को पकड़ेंगे, ओके, E1 टेबल की फर्स्ट रो को, और उसे E2 टेबल की हर रो से कंपेयर करेंगे. ऐसे तो नेस्टेड क्वेरी काम करती है. ओके, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, ये सब ऑटोमेटिक है. सो हमें यहाँ पे करना क्या है, हम ना एक कंसेप्ट देखते हैं. जैसे कि हमारे पास यहाँ रोहित है, इसकी हाईएस्ट सैलरी है.
तो अगर मैं ये कहूँ कि रोहित की सैलरी कितने एम्प्लॉय से कम है, रोहित की सैलरी कितने एम्प्लॉय से कम है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। रोहित की हाईएस्ट सैलरी है ना, तो उसकी सैलरी किसी भी एम्प्लॉय से कम नहीं है। इस कंसेप्ट का हमें यूज करना है। जैसे कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है? अमर की। कितना? $20,500। सो द सैलरी ऑफ अमर इज लेस देन हाउ मेनी एम्प्लॉयज? इट इज लेस देन ओनली वन एम्प्लॉय, रोहित। जो अमर की सैलरी है वो सिर्फ एक एम्प्लॉय से कम है, इसलिए मैंने यहां लिखा है n-1। ठीक है, जान के लिखा है n-1, एक कम लिखना है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कंपेयर करेंगे कि अमर की सैलरी, हरमन की सैलरी कितने एम्प्लॉय से कम है। हरमन की सैलरी पहले मैं कंपेयर करूंगा। क्या 10,000 से कम है? नहीं, मैं स्किप कर दूंगा इसे। 10,000 5,000 से कम है? नहीं। 10,000 20,500 से कम है? ऑफकोर्स। 10,000 रोहित की सैलरी से भी कम है और परमेश की सैलरी से भी कम है। तो मैं इसे काउंट कर लूंगा काउंट फंक्शन की हेल्प से, और मैं यहाँ लिखूंगा 3। जो 10,000 है वो कितने एम्प्लॉय से कम है? 3 एम्प्लॉय से। मतलब जो हरमन की सैलरी है वो 3 बंदों से कम है, मतलब उसकी सैलरी फोर्थ हाईएस्ट सैलरी है। बस इस कंसेप्ट का यूज करना है हमें। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, नीलेश को पकड़ूंगा और सबसे कंपेयर कर दूंगा। सो नीलेश की सैलरी 5,000 है, वो कितने एम्प्लॉय से कम है? इससे कम है, इससे कम है, 4 से कम है। ओके, मैं इसको नोट कर लूंगा यहाँ पे 4। काउंट फंक्शन की हेल्प से, यूजिंग द काउंट फंक्शन। ओके, इट विल बी ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। सो नीलेश की सैलरी 4 एम्प्लॉय से कम है। 4 एम्प्लॉय से कम है, इसका मतलब उसकी सैलरी का नंबर है 5th, मतलब उसकी सैलरी 5वें नंबर की हाईएस्ट सैलरी है। दैट्स ऑल। अमर की सैलरी कितने एम्प्लॉय से कम है? 1 से कम है, मीन्स उसका जो टॉप बॉस है उसके नीचे अमर है। इसका मतलब काउंट फंक्शन ने क्या रिटर्न किया? 1। मीन्स द सैलरी ऑफ अमर इज लेस देन ओनली वन एम्प्लॉय। उसका नाम है रोहित, तो अमर की सैलरी कौन से नंबर की हुई? सेकंड हाईएस्ट सैलरी हुई। दैट्स ऑल। सिमिलरली रोहित को हम सबसे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? 0। रोहित की सैलरी किसी भी एम्प्लॉय से कम नहीं है। परमेश की सैलरी 2 एम्प्लॉय से कम है, मीन्स उसका रैंक 3rd है। सो एक रैंक कम आ रहा है। ओके, दैट्स वाई हमने यूज किया है यहाँ पर n-1। सो बेसिकली एक काम कैसे कर रहा है, ये आउटर टेबल है E1 एंड दिस इज कॉल्ड इनर टेबल। सो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली नेस्टेड क्वेरी लिखते कैसे हैं? सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ एक ब्रैकेट लगा देते हैं। पहले क्वेरी लिखेंगे, देन वी विल यूज द ब्रैकेट हेयर, ओपनिंग ब्रैकेट एंड देन क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। यहाँ सेमीकोलन भी लगता है। सो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करेगा, जैसे कि नेस्टेड फॉर लूप में हमें सब कुछ लिखना पड़ता है। वी हैव टू राइट द स्टार्टिंग कंडीशन, स्टॉपिंग कंडीशन, अपडेटिंग कंडीशन, फॉर लिखना पड़ेगा i = 1, i = 0, i less than n और 5 और whatever i प्लस प्लस। तो हमें यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो ये क्या करेगा, एक रो पकड़ेगा एम्प्लॉय E1 की और सबसे कंपेयर करेगा। अब इनर क्वेरी में हमने किया क्या है, हमने टेबल को सेलेक्ट किया है और E1 की एक रो को E2 की सारी रो से कंपेयर कर रहे हैं और काउंट कर रहे हैं उस सैलरी को। ओके, जैसे कि हम हरमन की बात करें तो हम काउंट कर लेंगे कितनी बार 10,000 छोड़ता है, मतलब इससे कम कितनी सैलरीज है, वो ऑटोमेटिकली स्टोर्ड हो जाएंगी। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द 4th हाईएस्ट सैलरी। सो मैं यहाँ लिख दूंगा 3, n-1 की जगह 3। सो सबसे पहले क्या होगा, हरमन की सैलरी रिटर्न होगी, मीन्स काउंट रिटर्न होगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? 3, एंड 3 इज इक्वल टू 3। इट इज़ द इक्वालिटी ऑपरेटर। सो हरमन का नाम एंड सैलरी प्रिंट हो जाएंगी। ओके, बिकॉज इट इज़ द 4th हाईएस्ट सैलरी। 4th हाईएस्ट के लिए हमें 3 पे जाना होगा। जैसे कि फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी हमें फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। सो सबसे पहले 3 कंपेयर होगा 0 से, वो नहीं चलेगा। 4 कंपेयर होगा 0 से, वो नहीं चलेगा। 1 कंपेयर होगा 0 से, वो नहीं चलेगा। रोहित की सैलरी रिटर्न हो जाएगी। सो दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग। So nested query is very much frequently asked. I hope you guys have understood it. If you have not understood it, uh, just pay attention and you will understand it. So अब second way की बात करते हैं। द सेकेंड वे इज यूजिंग द इनबिल्ट फंक्शन। इसके काफ़ी सारे वेज हैं, मैंने लिमिट कीवर्ड का यूज़ किया है, आप टॉप कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक कीवर्ड का अगर आप रिमेंबर करेंगे इट इज़ वेरी इजी। सो हाउ दिस इज वर्किंग इज, दिस इज द पर्टिकुलर क्वेरी, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय
सैलरी डेस्क लिमिट n-1, 1। सो लेट अस सपोज आपको फाइंड करनी है फोर्थ हाईएस्ट सैलरी, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 3, 1। ओके, एंड दिस इज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर बाय की हेल्प से हम असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, नॉर्मली ऑर्डर बाय ग्रुप बाय के साथ यूज होता है, बट हमने यहाँ पे यूज किया। सो हम क्या करेंगे नॉर्मली, इस क्वेरी की हेल्प से होगा क्या, एक टेबल बनेगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली सारी की सारी सैलरीज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मान लो किसी की सैलरी थी $50,000, तो वो वहाँ आ जाएगी। फिर मान लो $40,000 है, वो आ जाएगी। $10,000 है, वो आ जाएगी। मीन्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर $5,000 आ जाएगी। सो हमें इस बंदे की सैलरी चाहिए ना, तो 3, 1 मीन्स पहली 3 सैलरी को स्किप कर दो और फोर्थ वाले का नाम प्रिंट कर दो। बट दिस इज वेरी इजी वे। सो नॉर्मली दिस थिंग इज नॉट आस्क्ड, like sometimes to check whether you have the knowledge of inbuilt function, interview can ask that uh, write the solution of nth highest salary using the inbuilt function. But normally if someone is asking the solution of nth highest salary, they will definitely ask you to write the solution using that, using the nested query concept. So I hope you have understood it, and in the next video what we will do is we will talk about the other queries that are very frequently asked. Thank you.